نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں مشرکین مکہ کے وہ اعمال ذکر ہو رہے تھے جن میں حلال چیزوں کو حرام کر رہے تھے اور حرام چیزوں کو حلال کر کے پیش کر رہے تھے، اور کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے وہ 10 احکامات ذکر فرمائے جو کہ بطور وصیت نامہ کے ہمارے سامنے ذکر کیے گئے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ انہی 10 احکامات کے بعد مشرکین مکہ کو ایک جواب دینا چاہتے ہیں، چونکہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے، قرآن مجید کو نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح یہ قرآن مجید نازل کیا گیا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب بھی عطا کی گئی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر آسمان سے کتاب نازل ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب۔ اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول اور نبی بھی آئے اور اللہ نے بعض پر آسمان سے کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ ثم پھر آتینا ہم نے دی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تماماً تاکہ پوری کریں نعمت کو، علی الذی اس شخص پر، احسن جو نیک ہے، بہتر ہے۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر کتاب تورات اس لیے نازل فرمائی تھی تاکہ جہاں اور بہت سی نعمتیں ہم ان کو دے چکے ہیں، وہاں پر تماماً ہم ان نعمتوں کو اتمام کریں، نعمتوں کو پورا کریں۔ علی الذی احسن اس بندے پر جو احسن ہے، جو بہتر ہے، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اس لیے بھی ہم نے کتاب تورات نازل فرمائی تھی تاکہ ہم تفصیل بیان کریں، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی، وَهُدًى اور رہنمائی کریں، وَرَحْمَةً اور رحمت بیان کریں، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ تاکہ یہ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھنے والے بن جائیں۔ یہ مقاصد بیان کیے گئے کہ تورات کتاب کے نازل کرنے کے مقاصد کیا کیا تھے۔ سب سے پہلا مقصد یہ بیان کیا گیا تماماً علی الذی احسن، تاکہ اتمام نعمت ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر فرمایا وتفصیلا لکل شیء، تاکہ جتنے بھی دنیا کے اندر اعمال کرنے ہیں ان کے احکامات تفصیلی طور پر ہر چیز کے، رہنا کیسے ہے، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، غمی خوشی، کیا کیا معاملات، ہر چیز کو تفصیلی طور پر بیان کر دیا جائے۔ وَہُدًى اور رہنمائی بھی کرے، یہ کتاب تورات رہنمائی بھی کرے، وَرَحْمَةً اور لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بھی بنے، اور سب سے آخر میں فرمایا لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اس کتاب کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھنے والے بن جائیں۔
जिस बंदे को आखरत की मुलाकात का यकीन कामिल हो गया वो कामयाब हो गया। किताब तौरात के नज़ूल का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने वहाज़ा, वाव का मना और, हाज़ा इसमें इशारा है, और ये किताबुन किताब है मुराद इससे कुरान मजीद। पहले तौरात किताब का जिक्र फरमाया, अब कुरान मजीद के बारे में अल्लाह फरमा रहे वहाज़ा किताबुन, और ये किताब है, अंज़लनाहु इसको भी हमने उतारा है। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब तौरात नाज़िल की थी, इसी तरह यहाँ भी हम इस किताब को नाज़िल कर रहे हैं। मुबारकुन ये किताब बाबरकत है, बरकत का ज़रिया है, ख़ुद भी बरकत वाली, जहाँ जाए वहाँ भी बरकत। एक बात यहाँ याद रखना, बरकत किसे कहते हैं? हम लोगों ने बरकत समझ रखा है कसरत को। कसरत और चीज़ है, बरकत और चीज़ है। अगर कसरत देखते हैं तो काफिरों के पास माल और दौलत की बहुत कसरत है, ढेरों के ढेर माल मौजूद है। नाफरमानों के पास बहुत बड़ा बड़ा माल मौजूद। फाहिशा और बेहयाई वाली औरतों के पास कितना ढेरों माल मौजूद, लेकिन उसको बरकत नहीं कहते। बरकत उसको कहते हैं कि जिसमें अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा हासिल हो, वो बरकत वाली ज़िंदगी होती है। जो ज़िंदगी अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुज़र रही हो वो बरकत वाली, जो माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च हो रहा हो वो बरकत वाला। हराम माल बरकत वाला नहीं होता, वो कसरत तो हो जाती लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। हलाल और हराम की तमीज़ कैसे होगी? उलमा इकराम ने यहाँ भी एक बहुत प्यारी बात लिखी, फरमाया अगर चेक करना चाहते हो हमारे घर के अंदर माल हराम आ रहा है या हलाल आ रहा है, उसकी एक निशानी ये है कि ये देखो कि इस माल के आने के बाद अल्लाह की तरफ से आजमाइशें तो नहीं आ रही, कोई पकड़ दकड़ तो नहीं हो रही, कभी कोई बीमार पड़ा, कभी कहीं पैसे लग रहे, कभी कहीं लग रहे, कभी कहीं लग रहे। अगर खुदा न खास्ता मामला ऐसा है तो तौबा तैब हो जाओ, को माल के अंदर गड़बड़ शुरू हो गई। और एक निशानी ये भी याद रखें कि उस माल को खाने के बाद अगर तो तबीयत नेकी की तरफ माइल रहती है तो मुतमईन रहें, मुबारकबाद के मुस्तहिक बन जाएं कि आपका माल हलाल है, क्योंकि हराम माल खाने के बाद नेकी की तौफीक छीन ली जाती है। अगर आमाल नेक चल रहे हैं फिर मुतमईन रहें कि हमारे घर के अंदर जो माल आ रहा है वो हलाल का है। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु, ये किताब कुरान मजीद है, अंज़लनाहु हमने इसको नाज़िल किया, मुबारकुन ये बरकत वाली किताब है, फत्तबिऊहु इसी की इत्तिबा करो, वत्तकू और डरते रहो, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए, ताकि तुम पर रहमत हो। जो इंसान कुरान पाक को सीने से लगाएगा, कुरान पाक की इत्तिबा करेगा, तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला वादा फरमा चुके लअल्लकुम तुरहमून, उसके ऊपर रहमत यकीनी हो जाएगी। आगे अल्लाह पाक इनका उज़र तोड़ रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान मजीद नाज़िल कर दिया, लोगों को हदायत का रास्ता बता दिया, गलत और सही की पहचान करवा दी, जन्नत और दोज़ख का रास्ता अलग अलग बयान कर दिया। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनी, कि कल क़यामत का दिन हो, अल्लाह की अदालत लगी हो और ये मुशरिकीन मक्का अरब के लोग जब अल्लाह की अदालत में पेश किए जाएं तो यहाँ पर ये जाकर उज़र ना पेश कर सकें, ए हमारे अल्लाह आपने हमसे पहले लोगों पर किताब नाज़िल फरमाई थी, किसी पर तौरात किताब नाज़िल फरमाई, किसी पर इंजील किताब नाज़िल फरमाई, को समझाने के लिए
ये फरमा दिया अन तक़ूलू इन्नमा, ये ना कह सको इन्नमा उन्ज़िलल किताबु, कि बेशक नादल की गई थी किताब, अला ताइफ़तैनी, दो जमातों पर, मिन क़ब्लिना, हमसे पहले, व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, और ये कि हम तो थे उसके पढ़ने पढ़ाने से लगाफिलीन, बेखबर, हम तो उस किताब के पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे। जो किताबें पहले नाज़िल की गईं, तौरात नाज़िल की गई, इंजील नाज़िल की गई, हम तो उसके पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे। औ तक़ूलू, या तुम यूं कहने लगो, ये उज़र बयान कर दो, लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताबु, अगर हम पर नाज़िल की जाती, लौ अन्ना, अगर बेशक, उन्ज़िला उतरती, अलैना हमारे ऊपर, अल किताब किताब, लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम ज़्यादा हदायत पर होते इनसे। कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में तुम यूं कहते कि या अल्लाह, इन किताब आपने आसमानी यहूदियों को दी, ईसाइयों को दी, अगर हमारे ऊपर नाज़िल करते हम इनसे भी ज़्यादा हदायत हासिल करते। लकुन्ना अहदा मिनहुम, अल्लाह ने सारे उज़र ख़त्म कर दिए, फरमाया फ़क़द जाअकुम, तहकीक आ चुकी तुम्हारे पास, बय्यिनतुन, हुज्जत, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व हुदन, और हदायत भी, व रहमतुन, और रहमत भी। कुरान पाक नाज़िल होने के बाद दलील कामिल भी तुम्हारे ऊपर आ चुकी, अब किसी किस्म का किसी का उज़र कबूल नहीं होगा। व हुदन, और कुरान पाक हदायत बन के भी आ चुका, व रहमतुन, और कुरान पाक रहमत बन के भी आ चुका। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि, कौन बड़ा जालिम होगा, मिम्मन, उस बंदे से, कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, जिसने जुटला दिया अल्लाह की आयतों को, वसदफ़ अन्हा, और एराज़ कर लिया इनसे, मुंह मोड़ लिया इनसे, इससे बड़ा जालिम कौन होगा। ये बात तो मुशरिकीन मक्का से की जा रही, जिन्होंने अल्लाह की आयतों के ऊपर झूठ का इल्ज़ाम लगा दिया कि हम नहीं मानते। किस लिए? इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल नहीं हुई, नाऊज़ बिल्लाह, आप खुद बना के ले आए। अल्लाह ने फरमाया दुनिया के अंदर जालिम बहुत होंगे, लेकिन फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि, कौन बड़ा जालिम होगा इस बंदे से जिसने जुटला दिया बिआयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों को, वसदफ़ अन्हा, और एराज़ कर लिया इनसे। सनजज़िल्लज़ीना, अनकरीब हम सदा देंगे उन लोगों को, यस्दिफ़ूना, जिन्होंने एराज़ किया, अन आयातिना, हमारी आयतों से, सूअल अज़ाबी, बुरे अज़ाब की। कौन सी सज़ा होगी? बुरे अज़ाब की सज़ा मिलेगी। क्यों? बिमा कानू यस्दिफून, इस वजह से कि ये एराज़ करते थे, कुरान पाक से मुँह मोड़ते थे। आज का मुसलमान भी कुरान पाक से बहुत दूर चला गया। उसको सोचना चाहिए कि अल्लाह ने इस आयत मुबारक के अंदर बता दिया कि जो आयतों से मुँह मोड़ते हैं, कुरान पाक से एराज़ करते हैं, कुरान पाक से रहनुमाई नहीं लेते, कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, इसके हकूक़ अदा नहीं करते, हम उनको सज़ा देंगे। इसलिए हमें चाहिए हम वक़्त निकाल कर कुरान पाक के साथ अपना मामला दुरुस्त रखें। हल यंज़ुरूना इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु, अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक नाज़िल कर दिया, हुज्जत भी बन गया, हदायत भी बन गया, रहमत भी बन गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये मक्के के मुशरिक ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। अब ये ईमान नहीं ला रहे तो मालूम होता है कि ये किसी इंतज़ार में है। हल यंजुरूना, ये नहीं इंतज़ार करते, इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु, मगर ये कि आए उनके पास फरिश्ते,
ये तो फरिश्तों के आने के इंतज़ार में हैं। 3 मौक़े ऐसे हैं जहाँ फरिश्ते इंसान के पास आते हैं। नंबर 1, इंसान की मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं। नंबर 2, इंसान को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाए, वहाँ इंसान के पास फरिश्ते आते हैं। नंबर 3, क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब होगा, वहाँ फरिश्ते इंसानों के पास आ जाएंगे। कुरान पाक में इसका तज़किरा मौजूद है कि क़यामत के दिन फरिश्ते सफ़ दर सफ़ अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। तो अब ये जो इंसान सारी दलाइल सुनने के बाद, हुज्जतें देखने के बाद, बय्यिनात के सामने आ जाने के बाद नहीं मान रहा और फिर भी कुरान पाक की इत्तिबा नहीं कर रहा, तो अल्लाह फरमाते हैं लगता ऐसे है, हल यंजुरूना, ये नहीं इंतज़ार करते, इल्ला अन तअतियहुम, मगर ये कि आए उनके पास अल मलाइकतु, फरिश्ते। और ये जो मौक़े फरिश्तों के आने के, उस वक़्त तो किताबें बंद हो चुकी, उस वक़्त तो नामे अमाल लपेट दिए गए, ख़त्म। फिर क्या करेंगे? औ यअतिया रब्बुका, या आए तेरा रब। ये भी क़यामत के दिन की तरफ इशारा है। औ यअतिया बाज़ु आयाति रब्बिका, या आए तेरे रब की बाज़ निशानियाँ। क़ुर्बे क़यामत जो निशानियाँ आएंगी उनकी तरफ इशारा है। यौम यअती बाज़ु आयाति रब्बिका, जिस दिन आएंगी बाज़ निशानियाँ तेरे रब की। कुछ निशानियाँ क़यामत से पहले आएंगी, कुछ निशानियाँ क़यामत के दिन ज़ाहिर होंगी। लेकिन उस वक़्त तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा, फिर इंसान को मोहलत नहीं मिलेगी। तौबा का दरवाज़ा बंद होने की 2 सूरतें हैं। एक सूरत ये है, हर इंसान के लिए इनफरादी तौर पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और एक सूरत ये है कि इज्तिमाई तौर पर इस कायनात के लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। हर इंसान के लिए तौबा का टाइम है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ, जब चाहे तौबा कर ले और अपने गुनाहों को माफ़ करवा ले, साफ शफाफ होकर अल्लाह का वली और दोस्त बन जाए। इंसान के पास मौका है। और एक सूरत ये है, लेकिन ये कब तक है? जब तक इंसान के पास गैबी निज़ाम सामने नहीं आता। जब इंसान का मौत का वक़्त आता है, उस वक़्त आखिरत की तरफ से पर्दे उठने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल करीब, चंद सेकंड पहले आखिरत की तरफ से पर्दे उठने शुरू हो जाते हैं। जब इंसान उस पोजीशन में जाता है, फिर इसके लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, क्योंकि अब ईमान बिल गैब ख़त्म, अब इसने सब कुछ देखना शुरू कर दिया, अब ये तौबा करता है, इसके लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है। और एक तौबा का दरवाज़ा इज्तिमाई तौर पर इस कायनात के लिए बंद हो जाएगा। वो किस वक़्त होगा? सूरज रोज़ाना मशरक़ की तरफ से निकलता है, मगरिब में जाकर गुरूब हो जाता है। एक वक़्त ऐसा आएगा जब सूरज मगरिब में जाकर गुरूब होता है, अगले दिन तलू होने के लिए अल्लाह ताला से इजाज़त मांगता है, या अल्लाह मैं तलू हो जाऊँ मशरक़ की तरफ से, अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिल जाती है। ये उसी अपने रफ्तार पर और उसी अपने रूट पर, अपने मैप पर सूरज चलता रहता है। एक दिन आएगा, ये सूरज अल्लाह के दरबार में सजदा रेज़ होगा और इजाज़त मांगेगा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपने रूट और मैप पर आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि मशरक़ की तरफ से दोबारा तुलू होकर लोगों के सामने आ जाऊँ। अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं मिलेगी, बल्कि हुक्म मिलेगा इस सूरज को
इन्हीं पाँव पर वापस लौट जाओ जहाँ से आए हो, तो सूरज मशरक की बजाय मगरब ही से तुलू हो जाएगा। वो वक़्त होगा जब इस कायनात के लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लोग देखकर परेशान हो जाएंगे कि इसी मकाम से सूरज ग़ुरूब हुआ और आज इसी मकाम से सूरज तुलू हो गया है। एक रवायत के मुताबिक जब ये तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, 120 साल तक लोग यूं ही दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर उसके बाद क़यामत का मंज़र आएगा और क़यामत बर्पा कर दी जाएगी। बाकी जो निशानियां हैं वो बहुत सी निशानियां हैं जो हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। एक निशानी उसमें ये बयान फरमाई थी कि सूरज मगरिब की जानिब से निकल आएगा। एक निशानी ये बयान फरमाई, दूसरी ख़ास किस्म का धुआं होगा। तीसरी निशानी ये बयान फरमाई थी कि दाब्बतुल अर्ज़, ज़मीन से एक जानवर निकल आएगा। और एक निशानी ये बयान फरमाई थी याजूज माजूज निकल आएंगे। एक निशानी बयान फरमाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों से ज़मीन पर उतर आएंगे। एक निशानी बयान फरमाई थी कि दज्जाल निकल आएगा, ज़ाहिर हो जाएगा। और एक निशानी ये बयान फरमाई थी कि 3 जगहों पर ज़मीन धंस जाएगी। मशरक़ की तरफ से एक निशानी, मगरब की तरफ से एक निशानी, जज़ीरतुल अरब में एक निशानी, ज़मीन धंस जाएगी। और वो लोग जो अल्लाह वालों के साथ लड़ाई करने के लिए निकले थे, सब ज़मीन के अंदर तहस नहस हो जाएंगे। और 10वीं निशानी ये है कि जो एक आग होगी जो ईंधन से निकलकर लोगों को आगे आगे हनकाएगी और मैदान महशर की तरफ लेकर जाएगी। और ये आग भी अजीब होगी, ये लोगों को हनकाएगी, लोग इससे आगे भागते रहेंगे। जब दोपहर का टाइम होगा आग रुक जाएगी, लोग भी आराम करेंगे, आग ठहरी हुई है। रात का टाइम हो, आग ठहरी हुई है। ये अल्लाह का निज़ाम है। फिर उसके बाद जब लोगों को हनकाने का टाइम आएगा, फिर वो चला देगी आग। इस तरीके से इनको हनकाते हुए ये मैदान महशर में लेकर जाएगी। तो अल्लाह ने फरमा दिया यौम याती बाज़ु आयाति रब्बिका, जिस दिन आ जाएंगी तेरे रब की बाज़ निशानियाँ, ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, नहीं नफ़ा मिलेगा किसी नफ्स को उसके ईमान का। उस वक़्त बंदा ईमान ईमान पुकारता रहे, उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा, नफ़ा बख्श नहीं होगा। दोनों सूरतें ज़हन के अंदर रखें। अगर काफिर है, ईमान लाना चाहता है तो ईमान कबूल नहीं होगा, और अगर नाफरमान है, तौबा करता है तो तौबा कबूल नहीं होगी। उस वक़्त से पहले पहले इंसान के पास टाइम है कि अपनी तौबा को अल्लाह के दरबार में रखे और कबूल करवा ले। इसलिए फरमा दिया यौम याती, जिस दिन आएगा बाज़ु आयाति रब्बिका, तेरे रब की बाद निशानियाँ, ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, नहीं नफ़ा मिलेगा किसी को उसके ईमान का, लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु, जो नहीं ईमान लाया था पहले, औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा, या दाखिल कर ले अपने ईमान में कोई नेकी। ऐसे भी नहीं हो सके कि अमाल नेक करके अपने ईमान के अंदर तौबा को दाखिल कर ले और अपने अमाल बेहतर करवा ले। कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, कुल फरमा दीजिए ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मक्का के मुशरिकीन को फरमा दीजिए, इंतज़िरू, तुम भी इंतज़ार करो, व इन्ना मुंतज़िरून, और बेशक हम भी इंतज़ार करने वाले हैं। तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। तुम किस बात का इंतज़ार करो जो आज बैठ के बार बार कहते हो अज़ाब क्यों नहीं आता, अज़ाब क्यों नहीं आता। करो अज़ाब का इंतज़ार। हक़ और बातिल का फ़ैसला अल्लाह की दरबार में होगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि अल्लाह की तरफ से क्या फ़ैसला हो रहा है, किसके लिए क्या फ़ैसला होता है। इसलिए तुम्हारे पास आज वक़्त है और अपनी इस्लाह करवा लें और अपने आमाल दुरुस्त करवा लें।
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔